برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ مرغی کا گوشت 12 روپے سستا ہوا، قیمت 519 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت 230 روپے فی درجن مقرر کی گئی، جبکہ انڈوں کی پیٹی 6780 روپے کی ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے نمائندے عبدالقادر بتائیں گے۔ عبدالقادر، آگاہ کیجئے۔ پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے ہیں، اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کھپت کم ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جی عبدالقادر ہمیں بتا رہے تھے، آپ کو بتائیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ مرغی کا گوشت 12 روپے سستا ہوا، جبکہ قیمت 519 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت 230 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی پیٹی 6780 روپے کی ہو گئی ہے۔ برائلر گوشت کی ریٹس میں کمی آ گئی ہے۔ برائلر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری آ چکی ہے۔ مرغی کا گوشت 12 روپے سستا ہوا ہے، قیمت اب 519 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ انڈوں کی بات کریں، فارمی انڈوں کی قیمت 230 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ زمان پارک میں پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کا یہ معاملہ ہے۔ اسپیشل برانچ نے لاہور پولیس کو تمام رہنماؤں، کارکنوں اور عہدیداروں کی لسٹیں جاری کر دی ہیں۔ پولیس ٹیموں نے لسٹوں کے مطابق گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ زمان پارک میں پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کا معاملہ، اسپیشل برانچ کی جانب سے لاہور پولیس کو 68 صفوں پر مشتمل پی ٹی آئی رہنماؤں، کارکنوں اور عہدیداروں کی گرفتاری کی لسٹیں جاری۔ پولیس ٹیموں نے لسٹوں کے مطابق گرفتاریاں بھی شروع کر دیں۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر، محمود الرشید، شفقت محمود اور شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنماؤں کے نام بھی لسٹوں میں شامل۔ پولیس نے میاں اسلم اقبال، میاں سلمان شعیب، ملک عثمان اور ظہیر عباس کھوکر سمیت دیگر رہنماؤں کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپے بھی مارے۔ ذرائع کے مطابق چھاپوں کے دوران متعدد گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ گرفتار کارکنان کو شہر کے مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے کارکنوں اور رہنماؤں کو اے، بی اور سی کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا بدھ کے روز مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھ پر کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود مجرم ہیں۔ حکومت مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا چاہتی ہے۔ وارنٹ تو رانا ثناءاللہ کے بھی ہیں، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تفصیلات محمد یاسین کی سپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں بدھ کے روز پاور شو کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کا زمان پارک میں ویڈیو لنک پر خطاب، بولے سرچ وارنٹ کے نام پر میرے گھر لوٹ مار کی گئی۔ عدالتی احکامات کے مطابق سرچ وارنٹ لے کر 2 آفیسر میرے گھر آ سکتے تھے۔ پولیس کس قانون کے تحت بھاری نفری لے کر میرے گھر داخل ہوئی؟ مجھ پر غداری اور دہشت گردی جیسے 96 مقدمات بنا دیے گئے۔ جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر، اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں، اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر۔ سو 2 لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی۔ یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ کس قانون کے تحت آتے ہیں؟ اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں؟ چیزیں لوٹ کے میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے؟ عمران خان نے کہا کہ حکومت مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے کر جانا چاہتی ہے۔ انتشار سے بچنے کے لیے انتخابی ریلی منسوخ کی۔ پنجاب میں ان پولیس افسران کو تعینات کیا گیا جن کے خلاف ہم نے لکھ کر دیا تھا۔ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا جرائم پیشہ لوگ حالات خراب کر کے الیکشن سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف مزید 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ مقامی عدالت نے زمان پارک سے گرفتار 102 ملزمان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ ملزمان کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ زمان پارک میں انسداد تجاوزات آپریشن کے دوران پولیس وین تباہ کرنے اور اہلکاروں پر تشدد کرنے والے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف مزید 2 پرچے کٹ گئے۔ ایلیٹ فورس کی گاڑی توڑنے پر 150 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ کانسٹیبل کی موٹر سائیکل توڑنے اور تشدد پر 40 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ دونوں مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل سمیت سنگین دفعات لگائی گئی ہیں۔ ادھر لاہور پولیس نے پہلے سے گرفتار 102 ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں کینٹ کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا۔ پولیس کی جانب سے
मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तमाम मुल्ज़िमान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को पीर के रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने की हिदायत की। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान से असलहा, पेट्रोल की बोतलें, पत्थर और दीगर सामान बरामद हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया। कहती हैं कि मुल्क में जंगल के कानून के जिम्मेदार इमरान खान है, जिन्होंने अपने गुंडों के जरिए अदालत पर हमला किया है। रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की मॉडल टाउन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली इमरान खान अपने गुंडों के साथ दहशत फैलाकर इस्लामाबाद पहुंचे। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया। वही शख्स आज जब इक़्तिदार के छिन जाने पर पागल हो चुका है, वो आज सियासी दहशतगर्द नहीं बल्कि वो दहशतगर्द है। और हम कहते थे कि जब इसको अदालत बुलाएगी ये सरकारी अमलाक भी तोड़ेगा, ये रियासत के ऊपर हमला आवर भी होगा, ये पुलिस वालों के सर भी तोड़ेगा, ये जत्थे भी लेकर आएगा, ये गुंडे भी लेकर आएगा, ये असला भी लेकर आएगा। और कल क्या हुआ? अवाम ने वो सब कुछ देखा। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि यास्मीन राशिद खुद कहती रहीं कि हमले करो। इमरान खान के हाथ दहशतगर्दी से रंगे हुए हैं। ये माशरे की हिफाजती जमानत पुलिस है जिसके ऊपर एक दहशतगर्द हमला आवर है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान जैसे दहशतगर्द के खिलाफ सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। कैमरामैन जुनैद के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। एजाजुल हक ने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का खैर मकदम एजाजुल हक कहते हैं कि क़यादत जो जिम्मेदारी देगी कारकुन की हैसियत से पूरा करूंगा। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की इमरान खान से मुलाकात। मुस्लिम लीग ज़िया को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म करने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एजाजुल हक और साथियों की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। एजाजुल हक ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कौम की वाहिद उम्मीद हैं। तहरीक इंसाफ के मंशूर और हकीकी आज़ादी के एजेंडे से मुकम्मल मुत्तफिक हैं। एजाजुल हक का मजीद कहना था कि तहरीक के एक कारकुन की हैसियत से क़यादत जो जिम्मेदारी सौंपेगी बखूबी निभाऊंगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। DIG ऑपरेशंस लाहौर अफजाल अहमद कोसर कहते हैं कि पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद में मुलव्वस PTI वर्कर्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। गुज़िश्ता रात एलीट फोर्स के जवानों पर तशद्दुद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिद लतीफ़। DIG ऑपरेशंस लाहौर अफजाल अहमद कौसर की अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस PTI कारकुनों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। अफजाल अहमद कौसर कहते हैं PTI कारकुनों ने एलीट फोर्स की गाड़ी को नहर में फेंका। एलीट की एक गाड़ी एलीट फोर्स की जो आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, वो अपनी एक ड्यूटी पे किसी थाने की तरफ जा रही थी और जब वो ज़मान पार्क के सामने से गुज़री है तो उस गाड़ी को वहाँ मौजूद कारकुनों ने रोका है, उन पे तशद्दुद किया गया, सरकारी असला छीना गया और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वो उस गाड़ी को नहर के अंदर फेंक दिया गया। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि पुलिस पर तशद्दुद करना संगीन जुराइम में शामिल है, कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। लाहौर पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएगी। स्टेट मशीनरी पे हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये जुर्म है और जिन लोगों ने भी ये किया है, जो वहाँ एक सियासी जमात के वर्कर मौजूद हैं जिन्होंने ये किया है, उनके ख़िलाफ़ हम सख्त तरीन कार्रवाई करने जा रहे हैं और कानून अपना रास्ता लेगा। DIG ऑपरेशंस ने वाज़ेह किया किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। एलीट फोर्स के एहलकारों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज हो चुका है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ज़मान पार्क ऑपरेशन के बाद हालात पुरसुकून हो गए। किनाल रोड पर ट्रैफिक बहाल है, पुलिस दूर दूर तक मौजूद नहीं है। PTI कारकुनान हिफाजती इक़दामात पर मामूर हैं। नहर में गिराई गई पुलिस वैन को भी निकाल लिया गया है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने ऑपरेशन करने वाले अफसरान को ललकार दिया है। तफसीलात देखिए। हफ्ता को होने वाले ऑपरेशन क्लीन अप और उसके बाद शाम और रात गए PTI कारकुनान का पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद इतवार को हालात कदरे पुरसकून रहे। कारकुन टोलियों की शक्ल में ज़मान पार्क मौजूद रहे, हिफाजती डंडे भी हाथों में रहे। कंटेनर्स लगाकर इमरान खान की रिहाइशगाह का रास्ता महदूद किए रखा। ग्रीन बेल्ट पर छोड़ा गया पानी मौजूद रहा और खेमे गायब हो गए। फ्लेक्सिस से भी कैनाल रोड साफ रही। कारकुन पुर अज़्म रहे कि कप्तान की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। आम कारकुनों के साथ PTI सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी ज़मान पार्क पहुंचे और ऑपरेशन करने वालों को पैगाम दिया कि सब किरदारों के चेहरे याद हैं। अब इमरान आएगा, वो पहले वाला इमरान नहीं होगा, सबका हिसाब लेंगे। सियारात खत्म होने वाली है, लेकिन इस दफा
عمران خان وہ نہ سمجھنا، میں افسروں سے کہتا ہوں کہ وہ نہ سمجھنا پرانا عمران خان. اب ہمیں ایک ایک چہرہ ہمیں یاد ہے، قانون کے حساب سے ایک ایک سے حساب لیں گے. پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے ایلیٹ فورس کی نہر میں گرائی گئی وین کئی گھنٹے نہر میں پڑی رہی، تاہم دوپہر کو نجی کرین کی مدد سے پولیس وین نکالی گئی. اس موقع پر پی ٹی آئی کارکنان پرامن طور پر موجود رہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سروسز ہسپتال آمد. زمان پارک آپریشن کے دوران زخمی افسران اور اہلکاروں کی عیادت کی گئی ہے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. زمان پارک آپریشن کے دوران مزاحمت پر زخمی پولیس ملازمین سروسز اسپتال میں زیر علاج. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اسپتال عیادت کے لیے پہنچے. زخمی افسران اور اہلکاروں کی خیریت دریافت کی. سروسز اسپتال میں زیر علاج پولیس ملازمین میں سب انسپکٹر سلمان اکبر، ASI نصیر اور فرقان شامل. اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ فرض کی ادائیگی کے دوران زخمی پولیس ملازمین کی بہادری قابل ستائش ہے. زخمی پولیس ملازمین کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں. آئی جی پنجاب نے اسپتال انتظامیہ کو علاج معالجے کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. اس موقع پر ان کے ہمراہ CCPO لاہور بلال صدیق میانہ بھی موجود تھے. ہونہار طلباء کی کامیابی کے لیے عملی اقدامات. پنجاب گروپ آف کالجز کے ذیلی ادارے اسٹیپ کے زیر تمام سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. لاہور سمیت ملک بھر سے ہزاروں طلباء نے شرکت کی ہے. کامیاب ہونے والے پہلے 3000 طلباء کو انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں 100% اسکالرشپ دی جائے گی. تفصیلات دیکھیے راہیل کی اس رپورٹ میں. پنجاب گروپ آف کالجز طلباء کی صلاحیتیں نکھارنے میں پیش اپنے ذیلی ادارے اسٹیپ کے زیر اہتمام میڈیکل اور انجینئرنگ کے لیے سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا. مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے 90,000 سے زائد طلباء ٹیسٹ میں شریک ہوئے. لاہور کے علاوہ دیگر شہروں میں طلباء کو آن لائن ٹیسٹ کی بھی سہولت دی گئی. سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے طلباء کو انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اسکالرشپ دی جائے گی. طلباء نے سیلف اسیسمنٹ کے انعقاد پر پنجاب گروپ آف کالجز کی کاوشوں کو سراہا. مین ٹیسٹ ہے، آپ کو ایک ٹیسٹ انوائرمنٹ سے فیملیرٹی بہت ضروری ہے. اگر آپ فیملیئر ہوں گے تو آپ فائنل ڈے پہ اچھا پرفارم کر سکیں گے. جو بھی بچے یہاں پہ سیٹ کا ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ وہ کس جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اس سے کانفیڈنس آئے گا اور آبویسلی جب کانفیڈنٹ ہے بچہ تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے. اتنا بڑا ادارہ اگر ہمیں کوئی اسکالرشپ آفر کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع ہمیں لازمی اچیو کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اسٹیپ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شاہد بشیر کا کہنا تھا ٹیسٹ میں کامیاب طلباء کو 100% اسکالرشپ ملے گی. پاکستان کے 100 سے زائد شہروں میں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں KPK میں ہمارے ہدف کالجز ہیں، وہاں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہا ہے. پنجاب میں پنجاب گروپ آف کالجز کے تمام کیمپسز میں ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ باقی صوبوں میں بھی جو آن لائن ٹیسٹ ہے وہ ہم کنڈکٹ کروا رہے ہیں. اسٹیپ سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کا دورانیہ 1 گھنٹہ 40 منٹ رہا جس میں طلباء کو 100 MCQs پر مشتمل پیپر حل کرنے کے لیے دیا گیا. کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز. نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ کا فائنل TBN پولو ٹیم نے جیت لیا ہے. سب جوڈری فائنل کی فاتح ٹیم FT پولو رہی ہے. شائقین کی کثیر تعداد فائنل میچ سے لطف اندوز ہوتی رہی. مبین حیدر کی رپورٹ دیکھیں. لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام دی سینچری وینچرز نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ قائد اعظم گولڈ کپ کا فائنل. چیئرمین پاکستان پولو ایسوسی ایشن لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. سیکرٹری پاکستان پولو ایسوسی ایشن لیفٹیننٹ کرنل ایاز محمود اور لاہور پولو کلب کی ایگزیکٹو کمیٹی سمیت فیملیز، بچوں اور تماشائیوں کی بڑی تعداد فائنل سے لطف اندوز ہوئی. چیمپئن شپ کا ٹائٹل PBN پولو کے نام رہا. فائنل میں ماسٹر پینٹس نیو ایج کیبلز ٹیم کو 12-6 سے ہرایا. Out of the air, Timmy Nadeem is chasing, pounds on the walls, the approach is perfect, Marwan's captain, in the first goal of the net, he's got it. BN پولو کی طرف سے حمزہ مواز خان اور ٹیٹوریوز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا. He fires one down towards the goal, Naseem is there, Hamza shoots, goal, Hamza Mawaz, wow! اس سے قبل سبسڈری فائنل میں ٹیم GF پولو نے DS پولو کو 10-6 سے شکست دی. فیملیز اور کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ اور انتظامات کو شاندار قرار دیا. امیزنگ ایکسپیرینس رہا ہم لوگوں کا بھی پولو کلب کے ساتھ اور انشاءاللہ آگے بھی کئی ایسے ایونٹ آیا کریں گے جو سپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے اور ہمیشہ سینچری ان کے پاس شانہ بشانہ ساتھ کام کریں گے. Very nice players on and outside the field and I'm really lucky and would love to be back here in Pakistan on these fields. My experience in Pakistan, I love it. It's my 4th or 5th season already. So I really have a good time. ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. راجہ تیمور ندیم کی گھوڑی کو ٹورنامنٹ کی بہترین پاکستانی گھوڑی کا ایوارڈ دیا گیا.
सैयद वाजिद अली शाह ट्रॉफी का अवार्ड गैर मुल्की खिलाड़ी कमीला के हिस्से में आया। बैरून मुल्क से आए शायकीन भी मैचेस से खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन उमैर के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से खबर ये है कि महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। सरकारी रेट इसमें 2 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। प्याज 110 रुपये, टमाटर 100 रुपये, लहसुन 440 और अदरक 720 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। मार्केट में सेब 400 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 320 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात है अब्दुल कादिर से जानेंगे। अब्दुल कादिर, 2 सब्जियां मज़ीद महंगी की गई हैं, क्या भाव ताव हैं आज मार्केट के? हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल सब्जियों की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो सकी, जबकि महंगे फल जो हैं वो बदस्तूर अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल है, तो इस पर बात की जाए तो प्याज 95 रुपये सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ये वही प्याज है जो कि मामूल के दिनों में 20 से 25 या 30 रुपये फ़ी किलो तक शहरियों को बआसानी दस्तयाब होता है, लेकिन अब ये 110 से 120 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 75 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है सरकारी रेट में, लेकिन टमाटर की फरोख्त मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। लहसुन 340 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 440 से 480 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक जो है 625 रुपये सरकारी रेट में आज कीमत है, लेकिन मार्केट में अदरक की फरोख्त जो है 720 से 740 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया उसमें लीमू चाइना 10 रुपये महंगा किया गया, 150 से कीमत बढ़ाकर 160 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही लीमू जो 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मटर 5 रुपये महंगे करके 100 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन 100 के बरक्स मार्केट में मटर जो है 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दीगर मौसमी सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो भिंडी 190 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 250 से 280 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी 145 के बरक्स 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि फूल गोभी 50 के बरक्स 70 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की कीमतें जो है वो आम शहरी की कुव्वत खरीद में नहीं आ सकी हैं। सेब काला कोल्हू 300 रुपये सरकारी रेट में कीमत है, लेकिन मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक सेब की फरोख्त की जा रही है। केला गरीब की पहुंच से यकसर दूर हो चुका हुआ केला दर्जा अव्वल 165 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 320 से 340 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला जो है वो 135 रुपये आज मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 220 से 240 रुपये फ़ी दर्जन तक दर्जा दोम का केला फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खजूरी रानी 470 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 570 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि कीनू जो है 240 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 400 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 140 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक अमरूद की फरोख्त की जा रही है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है वो खरीदारी करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सब्जियां और फल जो हैं सस्ते होने के बजाय बदस्तूर महंगे किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी रेटों में कीमतें कुछ और हैं और मार्केट में कीमतें कुछ और वसूल की जा रही हैं। जी, मार्केट में कीमतें कुछ और वसूल कर रहे हैं। अब्दुल कादिर, आप हमें मार्केट का हवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शहर में फ्री आटे का हुसूल शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। लाहौर में 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 40 आटा ट्रक मख्तस किए गए हैं, जबकि हुकूमती रिलीफ अवाम पर भारी पड़ने लगी है। घंटों इंतजार, धक्कम पेल, अफरा तफरी, बदनस्मी की इंतहा। मुफ्त आटा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। रायविंड मॉडल बाजार और मोहल्लनवाल चौक में मुफ्त आटे के लिए शहरी रुल गए। PITB एप्लीकेशन ऑन न होने से शहरियों को आटा ना मिल सका। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो शहरियों ने आटा ट्रक पर धावा बोल दिया। शहरियों ने इस अंदाज से मुफ्त आटे की तकसीम को अजियत और जिल्लत करार दिया। दूसरी जानिब DC लाहौर राफिया हैदर ने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के दौरे किए, शिकायत सुनी। राफिया हैदर ने बताया कि एक वक्त में एक शख्स को मुफ्त आटे का सिर्फ एक ही थैला दिया जाएगा। अगले थैले के हसूल के लिए पॉलिसी के मुताबिक कुछ रोज बाद आना होगा। मुफ्त आटा के अहल एक फर्द को कुल 3 थैले ही दिए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं रमजान में अवाम को रिलीफ के लिए टीमें मुतहरिक है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए खुद मैदान में आ गए हैं। मॉडल टाउन के स्कूल में कायम सेंटर का अचानक दौरा भी किया। शहरियों की तस्दीक और आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया गया है। मोहसिन नकवी ने अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का भी दौरा किया है।
रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम तर सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए मॉडल टाउन के स्कूल में कायम सेंटर का अचानक दौरा किया। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के अमल को चेक किया। मोहसिन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की कि शहरियों की तस्दीक से लेकर आटे की फराहमी का अमल कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। लंबी कतारें नहीं लगनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का भी दौरा किया, सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला बच्चों के कमरों में गए और तालीमों गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल के डॉक्टर से तमाम बच्चों का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्चों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपका हर तरह से ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। माह मुक़द्दस में भी अवाम हुकूमती रिलीफ से महरूम रहेंगे। पंजाब और वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद नहीं हो सका। दालें, चावल, घी और कुकिंग ऑयल पर कोई रियायत नहीं मिल सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे। रमज़ानुल मुबारक में चंद दिन रह गए, हुकूमत की जानिब से मुकम्मल रमज़ान पैकेज नाफिज न हो सका। मार्केट में खजूर, लीमू और दालों पर कोई रिलीफ न मिला। हर साल यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी लाई जाती थी, लेकिन इस बार मामूल के मुताबिक जारी सब्सिडी को ही रमज़ान पैकेज की शक्ल दे दी गई। मार्केट में दाल मसूर 300, दाल चना 280, सफेद चने 300 रुपए फी किलो फरोख्त। दर्जा दोम का घी 500 और दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल 540 रुपए फी लीटर दस्तयाब है। रमजानुल मुबारक की सबसे अहम खरीदारी ईरानी खजूर 560 रुपए फी किलो तक बिकने लगे। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 40% से तजावुज कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को रमजानुल मुबारक में कोई रिलीफ नहीं दिया जा सका। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर गोश्त सस्ता कराने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो गई है। पोल्ट्री फार्मर्स ने दरामदी पोल्ट्री फीड की अदम दस्तयाबी को मसले की वजह करार दे दिया है। वफाकी हुकूमत के सामने मामला उठाने पर इत्तफाक भी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगे मुर्गी गोश्त पर आला अफसरान ने सरगर्मी शुरू कर दी। मुर्गी गोश्त गुज़श्ता चंद हफ्ते से इंतहाई सतह पर फरोख्त हो रहा है। इस मसले का हल तलाश करने के लिए सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट मोहम्मद मसूद अनवर की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इजलास में पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास में रमजानुल मुबारक के दौरान पोल्ट्री प्राइसेस और सप्लाई चेन का जायजा लिया गया। तफसीली गौर खोज के बाद पंजाब हुकूमत का GMO सोयाबीन की तरजीही दरामद की इजाजत के लिए वफाकी हुकूमत से राबिते का फैसला हुआ है, ताकि पोल्ट्री फीड की किल्लत पर काबू पाया जा सके और कीमतें मुनासिब सतह पर वापस लाई जाएं। पोल्ट्री एसोसिएशन ने रमजानुल मुबारक में कम निर्ख ब्रायलर गोश्त की फराहमी को पोल्ट्री फीड दस्तयाबी से मशरूत किया था, जिस पर सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से मामला हल करने के लिए राबिते का फैसला किया। कैमरा टीम के हमरा जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट LDA ने लेस्को की तनसीबात की मुंतकली के लिए काम शुरू कर दिया है। लेस्को ने 29 अप्रैल तक बिजली के शटडाउन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ सामने आ गई है। LDA ने तामीराती काम शुरू करने से कबल अराजी को क्लियर करने का फैसला कर लिया। शाहदरा मंसूबे की अराजी पर कायम तामीरात को फौरी खत्म किया जाएगा। शाहदरा मोड़ पर वाक़े इमारतों, आर्जी तामीरात और तजावुजात से पाक किया जाएगा। LDA ने लेस्को की तनसीबात की शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है। पोल्स और लाइनों की शिफ्टिंग के लिए बिजली के शटडाउन का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया। 16 से 18 मार्च तक शरकपुर, बेगमकोट और चमन कॉलोनी के फीडर्स बंद रहेंगे। 25 मार्च को रुस्तम, न्यू सोहराब और रावी फीडर्स बंद होंगे। 1 अप्रैल, 8, 15, 22 और 29 अप्रैल को भी रुस्तम, न्यू सोहराब और रावी फीडर्स बंद रहेंगे। इमारतों और तजावुजात की मिसमारी पर 24 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च होंगे। LDA की जानिब से 6 माह में अराजी को मुकम्मल क्लियर कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और हुकूक से आगाही का आज़्म, क्रैकिंग द कोड के उन्वान से तकरीब। ख़वातीन के हकूक़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है। फ़हद अमीन की रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से शी मैटर्स की जानिब से निजी होटल में क्रैकिंग द कोड के उन्वान से तकरीब सजी। कायम मकाम US काउंसिल जनरल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत फाउंडर शी मैटर्स साइमा अरशद, CEO डिप्लेक्स मुसरद मिसबा, CEO हैंकर टेक्नोलॉजी मोहम्मद उमर फारूक, कंट्री सेल्स हेड जवेरिया खान, अलीना लोदी, जुनैद इसरार और सालिम गौरी समेत दीगर ने शिरकत की। कायम मकाम US काउंसलेट जनरल ने ख़वातीन के हक में मुनक़िदा तकरीब की पज़ीराई की। CEO हैंकर्स और शी मैटर्स उमर फारूक का कहना था कि ख़वातीन हमारे मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इनकी हर शोबाए ज़िंदगी में नुमाइंदगी ज़रूरी है। ख़वातीन का जो हिस्सा है वो तकरीबन 52% के करीब है
ان 52% خواتین کے بارے میں ہم مختلف باتیں کرتے ہیں, مختلف ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں وومن ڈے کے اوپر, مگر پریکٹیکلی ان کے لیے کیسے ہیلپ کرنی ہے, معاشرے میں کیسے ان کو لے کر آنا ہے, انیبل کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کو بھی ہیلپ ہو سکے, چاہے ان کے لیے کام کے مواقع پیدا کرنے ہیں, ان کی ایجوکیشن کے کرنے ہیں, ان کو وہ کریج دینی ہے کہ وہ معاشرے میں آ کے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. سو شی میٹر کا ایونٹ اس حوالے سے ہے, اور ہینکر جو ہے وہ اس ایونٹ کو فلی سپورٹ کر رہا ہے. شرکا نے خواتین کو خود مختار بنانے, نجی اور حکومتی اداروں میں مساوی ملازمت کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیا. پیرنٹس کو ایک موٹیویشن چاہیے, اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ پیرنٹس کسی بھی موٹیویشن کے بغیر جو ہے اپنی بیٹی کو اسپیشلی باہر نکالیں گے کہ جی جاؤ جا کے دھوپ میں کھیلو. ان کو موٹیویشن چاہیے کہ جب یہ باہر نکلے گی تو یہ کیا کما کے لائے گی, اور اس میں آپ لوگوں کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں میں اعزازی شیلڈز اور میڈلز تقسیم کیے گئے. محکمہ ریلوے اور دیگر محکموں نے NOC جاری نہیں کیے, کچی آبادیوں کے رہائشیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا منصوبہ رک گیا ہے. زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کچی آبادیوں کے رہائشیوں کا مالکانہ حقوق دینے کا اعلان کیا. دوستوں, کچی آبادیوں کی رہائشیوں کو مالکانہ حقوق کے لیے معلومات اکٹھی کی گئی. LDA کی کچی آبادیاں دیگر محکموں کی اراضی پر بننے کے سبب کچی آبادی ڈائریکٹوریٹ نے کام روک دیا. LDA کے زیر انتظام کچھ آبادیاں ریلوے تو کچھ مسلم اوقاف کی زمینوں پر بنی ہیں. دیگر محکموں کی اراضی پر بھی کچی آبادیاں موجود ہیں. محکمہ ریلوے اور مسلم اوقاف نے NOC جاری نہیں کیے, جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. 1985 کے سروے کے مطابق LDA کی حدود میں 370 ریگولر کچی آبادیاں ہیں. LDA کی جانب سے ماضی میں 170 کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیے گئے. LDA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے دیگر اداروں سے بھی رابطہ کیا جائے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر 200 کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے. جوہر ٹاؤن انٹرٹینمنٹ پارک پروجیکٹ کو بڑا دھچکا لگ گیا. 2 سال بعد LDA کا منصوبہ بجٹ سے نکال دیا گیا. انٹرٹینمنٹ پارک کی تعمیر کا پروجیکٹ مالی سال میں شامل ہی نہیں کیا گیا. جاری کیے گئے تمام ٹینڈرز بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. جوہر ٹاؤن میں انٹرٹینمنٹ پارک کی تعمیر کا منصوبہ LDA نے منصوبہ 2 سال بجٹ میں رکھنے کے بعد فائل کو دبا دیا ہے. پروجیکٹ کو مالی سال میں شامل ہی نہ کیا گیا. پنجاب حکومت اور محکمہ ہاؤسنگ نے LDA کو منصوبے کی اجازت نہ دی. سیکٹری ہاؤسنگ اور PHA نے NOC دینے کی استدعا مسترد کر دی ہے. LDA نے انٹرٹینمنٹ پارک کے تمام ٹینڈرز منسوخ کر دیے. علیم ڈار اکیڈمی سے ملحقہ پارک کو دوبارہ PHA کے حوالے کیا جائے گا. LDA نے جوہر ٹاؤن میں 141 کنال اراضی پر انٹرٹینمنٹ پارک بنانے کی منظوری دی تھی. DG LDA کا کہنا ہے کہ جوہر ٹاؤن میں شہریوں کی تفریح کے لیے ارینا واک اینڈ شاپ سینٹر مکمل کیا جا رہا ہے. فی الحال انٹرٹینمنٹ پارک منصوبے کی ضرورت نہیں. پلاننگ مکمل ہے. مستقبل میں اس منصوبے پر کام کریں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین, لاہور نیوز. اتحاد گروپ کے تحت اتحاد ٹاؤن فیز 2 کی براہ راست قرعہ اندازی اور جلد قبضہ کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں بذریعہ قرعہ اندازی فائل خریداروں کو ان کے پلاٹ نمبر الاٹ کیے گئے ہیں. اسکیم میں ہونے والے ترقیاتی کاموں بارے ویڈیوز بھی دکھائے گئے ہیں. مزید احوال بتا رہے ہیں حمزہ خورشید اپنی سپورٹ میں. پرسکون اور جدید طرز رہائش کا ایک اور رہائشی منصوبہ اتحاد گروپ کا حال ہی میں لانچ کیا گیا. نیا رہائشی منصوبہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 کامیابی کی جانب گامزن. پلاٹ مالکان کے اعزاز میں براہ راست قرعہ اندازی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں پلاٹس کی فائلیں حاصل کرنے والے تمام مالکان کو مدعو کیا گیا. اس موقع پر اسکیم میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں. اتحاد گروپ کے COO شجاع اللہ خان کا کہنا تھا کہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 میں شہریوں کو مناسب قیمت پر پرائم لوکیشن میں گھر خریدنے کا موقع دینے پر انتہائی خوشی ہے. قرعہ اندازی کا عمل صارفین میں پلاٹس کی تقسیم کا منصفانہ اور شفاف عمل ہے. اس ایونٹ کا مقصد جتنے بھی دوستوں نے ہمارے ساتھ ڈے فرسٹ سے انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے اپنی جمع پونجی اتحاد ٹاؤن کے ساتھ لگا کے امید ظاہر کی کہ جی یہاں پہ وہ اپنی فیملی کا گھر بنائیں گے اور یہاں پہ ان کو یہاں پہ لیونگ کمیونٹی ملے گی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپانسر نبیل کھوکھر کا کہنا تھا کہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 نیا تعمیراتی منصوبہ ہے جو خاندانوں کو دیر پا گھروں کی تعمیر کا موقع فراہم کرے گا. آج بیلٹنگ کا دن ہے, آج اکنالجمنٹ کا دن ہے. سب سے پہلے میں نے جیسے صاحب کہ جو ہمارے ڈیلرز ہیں ہم سے شروع سے آئے ہیں, وی وانٹ ٹو اکنالج دیم, وی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ دیم. جو آپ سے ہم نے پرومس کیا آج سے اس کی ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے. اسکیم کے اسپانسر فیصل کھوکھر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 کی انتظامیہ اعلیٰ معیار کے رہائشی منصوبے کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. محنتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ایک نیت سے چلے تھے. اللہ تعالیٰ اس گروپ کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر برکتیں ڈال رہا ہے اور میرے ساتھ جڑنے والے تمام ساتھیوں کو, دوستوں کو, آنے والے تمام مہمانوں کو
मैं सलाम पेश करता हूँ। तकरीब के इख्तिताम पर सेल्स पार्टनर्स में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स का अजरा ना हो सका। बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर के मंसूबे तकमील के लिए फंड्स के मुंतज़िर हैं। शहबाज दौर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी फंड्स ना होने के सबब मुकम्मल नहीं हो सके। शहर में जारी और नए तरक्याती मंसूबों की तकमील का मामला। निगरान पंजाब हुकूमत ने LDA की सदा पर फंड्स का इजरा न किया। शाहकाम फ्लाईओवर से मुल्हिका डिफेंस रोड की तोसी का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। गुलाब देवी अंडरपास से मुल्हिका लाहौर ब्रिज की तोसी का काम भी इल्तवा का शिकार है। शेरवाला फ्लाईओवर के साथ सर्कुलर रोड पर रोड लाइट्स लगाने का काम अधूरा है। सगिया मंसूबा पैकेज 3 नामुकम्मल। समनाबाद अंडरपास पर भी तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। शाहदरा मल्टी लेवल के फंड्स होने के बावजूद मंसूबे पर तामीरात के लिए अराजी क्लियर ना हो सकी। फंड्स ना होने के बाइस तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का काम भी मुकम्मल नहीं। LDA ने पंजाब हुकूमत को दोबारा फंड्स के इजरा के लिए इस्तदा कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। माली साल 2022-23 के 9 माह गुजर चुके हैं। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी जारी और नए मंसूबे मुकम्मल नहीं कर सकी। पार्कों की बहाली के लिए मख्तस 1 अरब रुपए के फंड्स दीगर स्कीमों पर खर्च हो गए हैं। बजट में मंजूर शुदा 2 स्कीमें भी शुरू होने की मुंतज़िर हैं। PHA बजट 2022-23 पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल न कर सकी। रवा माली साल में कोई नया पार्क भी न बन सका। PHA ने रवा माली साल 4 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पंजाब हुकूमत ने पार्क्स की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के लिए मुख्तस 8 करोड़ 40 लाख रुपए भी खर्च न हो सके। जिलानी पार्क में जिप लाइन की तामीर का काम भी न हो सका। पंजाब बजट में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर को सिर्फ 2 स्कीमें मिल सकी। PHA को हॉर्टिकल्चर के लिए नया इदारा बनाने का टास्क सौंपा गया। रवा माली साल कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप तश्कील न दिया जा सका। हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए माली साल में 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए। PHA को माली साल में एक नई स्कीम के लिए फंड्स भी दिए गए। बाकी जिना के लिए 2 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए मुख्तस किए गए, मगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर ताहाल डेवलप नहीं किया जा सका। आलमी वबा के हवाले से खबर यह है कि पंजाब में एक बार फिर कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है। लाहौर समेत सूबे भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। महकमा सेहत पंजाब और NCOC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि रश वाले मकामात और अस्पतालों में मास्क की पाबंदी होगी। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा का खतरा फिर मंडलाने लगा। पंजाब में कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा। NCOC ने तकरीबन 1 साल के बाद मुल्क भर में फिर से मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। महकमा सेहत प्राइमरी एस सेकेंडरी ने भी मरासला जारी कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में मास्क पहनना लाजम होगा। मरासले के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में रश वाले मकामात पर मास्क लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि अस्पतालों में भी मास्क पहनना लाजिम होगा। NCOC की हिदायत के बाद महकमा सेहत पंजाब की गाइडलाइंस पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जाएगा। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाने के अहकाम दे दिए गए हैं। वासा ब्लॉक की आउटसोर्सिंग का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया। गली मोहल्लों में सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग प्राइवेट ठेकेदारों से करवाई जाएगी। वासा के एक सब डिवीजन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ठेके पर दिया जाएगा। करप्शन खत्म करने और वासा अमला की हालत बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान तैयार। ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशंस के बाद डिसल्टिंग भी ठेके पर देने का मंसूबा। MD वासा के अहकामात पर शोबा O&M ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। गली मोहल्लों में सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से करवाई जाएगी। डिसल्टिंग के लिए वासा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को मुआवजा अदा करेगा। वासा का शोबा O&M सिर्फ मॉनिटरिंग के फराइज अंजाम देगा। वासा के एक सब डिवीजन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ठेके पर दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद ठेके देने का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। शहर की 6000 किलोमीटर तवील सीवरेज वाटर सप्लाई लाइनें ठेके पर दी जाएंगी। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देना प्लान में शामिल है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स नई मशीनरी के साथ डिसल्टिंग करेंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला का 20 मार्च से पंजाब भर में हफ्ता सेहत मनाने का ऐलान किया गया। कहते हैं कि हस्पतालों में दही और बुनियादी मराकज़ सेहत में आवाम की मुफ्त स्क्रीनिंग की जाएगी। मोहसिन नकवी ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का दौरा भी किया है। रिपोर्ट करें मोहम्मद यासीन।
निगरान पंजाब हुकूमत शोबा सेहत में बेहतरी के लिए कोशा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का दौरा, हफ्ता सेहत मनाने के हवाले से इंतजामात बारे ब्रीफिंग ली, टीबी और ड्रग टेस्टिंग लैब समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। निगरान वज़ीर आला ने 300 नई अल्ट्रासाउंड मशीनें बुनियादी मराकज़ सेहत के हवाले की। 98 नई एम्बुलेंसेज की चाबियां भी निगरान वज़ीर सेहत के सुपुर्द की गयी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मुफ्त तिब्बी मुआयने के लिए खुसूसी कैंप्स लगाए जाएंगे। अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। निगरान वज़ीर आला ने हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट और हेल्थ रेडियो स्टेशन का भी संगे बुनियाद रखा। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के इंचार्ज डॉक्टर फारूक अहमद को एडवांस लैब का ISO सर्टिफिकेट भी दिया। लाहौर के बासियों के लिए अच्छी खबर है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रमज़ान और मुबारक में अशिया खरोनोश की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ रद्द कर दी है। अशिया खरोनोश की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। मार्च में दालों, गोश्त, दूध, दही और नान रोटी की कीमतें बरकरार रखने के अहकामात ज़िलाई इंतजामिया ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट को हिदायत जारी कर दी। चावल बासमती सुपर नया 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। दाल चना बारीक 235 रुपए और दाल चना स्पेशल 250 रुपए किलो मिलेगी। दाल मसूर 255 रुपए, दाल माश धुली 405 रुपए फी किलो मुकर्रर, दाल माश छिलके वाली 370 रुपए और दाल मूंग 250 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। काले चने 220 रुपए और सफेद चने 330 रुपए फी किलो दस्तयाब होंगे। बेसन 245 रुपए फी किलो मिलेगा। सादा रोटी 15 रुपए और नान 25 रुपए में मिलेगा। दूध 140 रुपए और दही 165 रुपए फी किलो फरोख्त होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गंदम की नई इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन और ख़रीदारी हदफ 35 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर की गई है। ज़मींदारों को इजाफी 60 रुपए फी बोरी ट्रांसपोर्टर चार्ज भी अदा किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत और खरीदारी का हदफ मुकर्रर। गंदम की नई इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन और हदफ 35 लाख मैट्रिक टन रखा गया। पंजाब में गंदम खरीदारी के 393 मराकज़ फ़ाल कर दिए गए। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर टारगेट पूरा करने के जिम्मेदार होंगे। सेक्रेटरी फूड पंजाब जमान वट्टू ने गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी का बाकायदा इजरा कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक तारीख में पहली बार दौरान गंदम खरीदारी सरकारी गोदामों को ताले नहीं लगाए जाएंगे। दौरान गंदम खरीदारी फ्री आटा स्कीम के लिए रमजान में गंदम का इजरा जारी रहेगा। तकर्रुर और तबादलों पर दौरान गंदम खरीदारी पाबंदी आयद कर दी गई है। फ्लोर मिल्स को सेक्रेटरी फूड की इजाजत से गंदम खरीदने की इजाजत होगी। गंदम खरीदारी मौसम और फसल तैयार होने की सूरत में शुरू की जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक गंदम टारगेट पूरा होने तक खरीदारी जारी रहेगी। गंदम खरीदारी की मॉनिटरिंग के लिए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट को इख्तियारात दिए गए हैं। सरकारी खरीदारी में 50 किलो 115 ग्राम वजन के हिसाब से होगी। गंदम खरीदारी के औकाते कार सुबह 9 से 5 बजे तक होंगे। 100 बोरी तक जमींदार को नकद रकम अदा की जाएगी। 100 से ज्यादा बोरी पर रकम बैंक के जरिए अदा की जाएगी। प्राइवेट अफराद को खरीदारी की इजाजत नहीं होगी। किसानों की शिकायत के लिए PITB में शिकायत सेल फाल कर दिया गया है। महंगी बिजली पर रिलीफ देने का फैसला किया गया। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने स्कूलों को रिलीफ देने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। महंगी बिजली से परेशान स्कूल सरबराहान के लिए अच्छी खबर। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का स्कूलों को रिलीफ देने का फैसला। फी स्कूल बिजली के बिलों पर कितना खर्च होता है, महकमा स्कूल्स ने सरकारी स्कूलों से रिकॉर्ड मंगवा लिया। हर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी रिकॉर्ड जमा करवाएगी। मरासले में कहा गया है कि जून से मार्च तक का रिकॉर्ड इरसाल किया जाए। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को 2 दिन का वक्त दे दिया गया। स्कूल सरबराहान का कहना है कि बिजली के बिलों को अदा करने के लिए खुसूसी फंड दिए जाएंगे। नॉन सैलरी बजट में बिलों की अदायगी के बाद रोजमर्रा के अखराजात में कोई फंड्स नहीं बचते। स्कूलों में नई दाखिला मुहिम शुरू हो चुकी है, मगर बच्चों के लिए मुफ्त किताबों की कमी का मसला हल नहीं हो सका। आतिफ परवेज की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम हजारों बच्चों को पुरानी किताबों पर ही गुजारा करना होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नई दाखिला मुहिम तो शुरू कर दी गई, मगर किताबें मुकम्मल फराहम नहीं की गयी। स्कूल सरबराहान भी परेशान। एजुकेशन अथॉरिटीज का प्रमोट होने वाले बच्चों से पुरानी किताबें लेने का हुक्म। ज़राए महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि फंड्स की किल्लत के बायस मुफ्त दरसी खुद कम प्रिंट की गयी। बच्चों को सिर्फ पुरानी किताबें वापस करने पर ही नई किताबें मिलेंगी। स्कूल सरबराहान की हिकमत अमली के मुताबिक बच्चों से पुरानी किताबें 31 मार्च को रिजल्ट वाले दिन वसूल की जाएंगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज।
खबरों की तफसील आप जान चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।